مرزا صاحب 14ویں خلیفہ تھے، طارق بھائی جنبا صاحب 15ویں ہیں۔ پیش کر رہے ہیں، طارق بھائی جو تحریر پیش کر رہے ہیں کہ اس وقت ود مرزا فیملی بڑا جڑا ہوا تھا، یہ ہے۔ چلو اور کوئی بات اس سے موٹی موٹی؟ اچھا میں ایک بات آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں، آپ کون سے ضلع سے تعلق ہوگا؟ جو بھی ضلع ہے آپ کا پاکستان میں، آپ نے ضلع میں نظر مارے 1 2 3 آپ کو جاگیردار نظر آئیں گے، یہی بات ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ ان کے پاس جاگیریں کہاں سے آئی تھی؟ یہ انگریزوں نے دی تھی۔ انگریزوں نے تو وہ تو چور تھے، ٹھگ تھے، وہ تو لوگوں سے چھینتے تھے، ان کو کیوں نوازا گیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ جاگیریں دی تھی انہوں نے اپنی، تاکہ یہ ہمارا ساتھ دے، ہمارا جی 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 بالکل بالکل، یہ بات تھی۔ یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جمروز بھائی بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن ان کو بار بار کال آ رہی ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے کوئی میرے خیال میں نا فون کے اوپر۔ گھنٹے کے نمبر ہے تو گھنٹے کی کرو کال۔ بھائی اللہ دے بندے ہو، ایڈی اچھی انفارمیٹیو گفتگو کر رہے ہیں، میری گل سنو تے اسی تے گپاں ہی مارنی ہے نا، کوئی گل نہیں یار۔ اچھا 1 منٹ سر۔ السلام علیکم جی تمام بھائیوں کو، تمام دوستوں کو، آنے والوں کو بھی السلام علیکم۔ دیکھیں جی، یہ جو جتنے بھی ہمارے اس طرح کے بزرگ ہیں نا، آپ ان کا جذبہ دیکھیں کہ اس عمر میں بھی، اور اتنی یعنی کہ اس عمر میں پہنچ کے بندے کو کئی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، تو اتنی گفتگو کرنا اور اتنی باتیں یاد رکھنا یہ بڑی بات ہے۔ یقین مانے قابل تحسین ہے ان کا جذبہ جو ہے نا، ماشاءاللہ۔ ہم لوگوں نے اس عمر کو پہنچنا ہے تو ہمیں بھی لوگوں نے ایسے ہی کہنا ہے بڈھا کتوں آ گیا ہے ٹائم ضائع کر۔ ابو حسن بھائی، جی 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 حضور آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، پر جو دین کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے پھر وہ بزرگ کا حافظہ پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حالانکہ سبحان اللہ۔ اکثر بزرگوں کے حافظے کمزور ہوتے ہیں، یعنی دین سے تعلق نہیں ہوتا، جوانی میں تو تیز ہوتے ہیں، پھر بعد میں بالکل ہی بچے جیسے ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ اور جو دین کے ساتھ ملتا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی ہو XYZ، زید ہو بکر ہو، تو اس کا حافظہ اس قدر تیز ہو جاتا ہے، اس قدر کہ اسے 12,000 حدیثیں بھی یاد ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نے کم کہی ہے، اور کافی حوالہ جات ہیں اس پر بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم ابو حسن بھائی، جمیل بھائی، حمزہ بھائی، توقیر بھائی، کیا حال ہے جی؟ اللہ باقی تمام بھائیوں کو السلام علیکم۔ شہزاد نیچے کے ٹپ ٹپ کر رہا، اوپر آنا، اپنے اندر اوپر آنے کا حوصلہ نہیں ہے، نیچے بیٹھ کے جو ہے بکواس کر رہا تو۔ جتنے بڑے گالی باز تم مرزائی ہو نا، اتنا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یار یہ نیٹ کا پرابلم تھا، نیٹ کا پرابلم تھا، میں چلا گیا تھا۔ خان صاحب 1 منٹ میں معذرت کے ساتھ، شہزاد او شہزاد تھلے بہ کے ٹپ ٹپ نہ کر، انہاں کوئی گل نہیں بند کر دیو تے شہزاد اور تھوڑی دیر تک میری آئی ڈی دے اوتے تانوں بھونکدا نظر آئے گا، ٹینشن نہ لو۔
ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੇ अपनी पूरी बात दोबारा रख दी है जो आपने पहले रखी थी आके, तो प्लीज़ उनके सवाल को भी एड्रेस करें जो उन्होंने तहरीर पढ़ के कहा है कि इससे आप क्या मुराद लेते हैं कि आपस में मिल के काम करो जब तक कोई रूहुल कुदस पाकर नहीं आ जाता, इसका मतलब क्या है वो उनको समझा दें जी। ये बात करें, ये इंपॉर्टेंट बात उन्होंने पूछी है, आपने वो पूरा मुद्दा दोबारा अपना रख दिया है तो उसका नहीं, फायदा ये नहीं भाई है। बीच में बोल पड़े थे, मुझे चलो ये छोड़े, बात आप इस सुनने पे का आ जाएं, मौका आप दीजिए। आप टू द पॉइंट पे रहे ना, पीछे बातों को छोड़ के आगे चलें। जी टॉक मास्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात सही तरह सुन नहीं सका, काइंडली फिर जरा दोबारा बताइएगा। असल में तारक भाई जो हैं वो बार बार एक तहरीर पेश कर रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने ये कहा था कि मेरे बाद मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ अमीर बना लेना और सब उस वक़्त तक काम करना जब तक कोई खुदा से रूहुल कुदस पाके ना आ जाए। अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो तारक भाई पूछ रहे हैं वो रूहुल कुदस का वो क्या यानी इसके क्या मायने हम करें कि क्या खिलाफत जो चले खिलाफत ही ले लें हमारी, क्या इसके बाद कोई रूहुल कुदस आने वाली है जब तक ये मिलके काम करें आप? जी देखिए सर, बात दरअसल ये है कि मेरे पर तो पहले ही इल्ज़ाम है और ना ही मैं कभी अकीदों में इतना ज़्यादा खेलता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इस्लाम जो है ना वो आसान है, ठीक है। ये जिनके लिए मुश्किल है ना वो तारिक साहब इस बात का जवाब देंगे। कहाँ जी, रूहुल कुदस से मुराद आप हज़रत जिब्राइल का दोबारा से ज़हूर मानते हैं, किसी इंसान से उनका ताल्लुक मानते हैं, या वैसे ही कोई सईद रूह की बात हो रही है? काइंडली आप बता दें, आपका हाँ इल्म जी, हमें ये सबसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपके पास तो बातें मिर्जा चल साहब रही की तो तालीम नहीं है ना। क्या से बंद डाक हो मास्टर गई? साहब सुने जरा, मैं पेश कर देता हूँ रूहुल कुदस काफर मैं क्या हूँ, लिखा हुआ है, आप जूतियां सुने मैं जरा। खाऊं और तालीम भी मेरे पास नहीं है, ठीक है, आप हाँ जी, जवाब दें। ये इनके पास तालीम नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तजदीद दीन वो पाक कैफियत है कि अव्वल आशिकाना जोश के साथ उस पाक दिल पर नाज़िल होती है कि जो मुकालमा इलाही के दर्जा तक पहुँच गया हो, फिर दूसरों में जल्द या देर से उसकी सरायत होती है। जो लोग खुदा ताला की तरफ से मुजद्ददियत की क़ुव्वत पाते हैं वो वाकई तौर पर नायब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रूहानी तौर पर आन जनाब के खलीफा होते हैं। खुदा ताला उन्हें उन तमाम नेमतों का वारिस बनाता है जो नबियों और रसूलों को दी जाती हैं, और खुदा ताला के इल्हाम की तजल्ली उनके दिल पर होती है, और वो हर एक मुश्किल के वक्त रूहुल कुद्स से वो मुजद्दद की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से वो वही पाता है, वो नायब रसूलुल्लाह होता है, रूहानी तौर पर आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा होता है, और नबियों और रसूलों के कमालात उसको दिए जाते हैं। तो ये है वो रूहुल कुदस पा के जिसने आना था, हर सदी के सर पर आता है। जो मिर्ज़ा साहब भी रूहुल कुदस पा कर आए थे 14वीं सदी में, तो 15वीं सदी में अब अब्दुल गफ़ार जंबा साहब आए हैं, और ये सिलसिला क़यामत तक जारी है। जी टॉक मास्टर साहब, आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का? नहीं, ये तो तारिक साहब का जवाब तो मुझे ऑलरेडी मालूम था कि वो ये मानते हैं कि जो मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि रूहुल कुदस तुम में आएगा, तो उन्होंने तो मान लिया उनको, जंबा साहब को, रूहुल कुदस के तौर पर। लेकिन हमारा ये है वाटर भाई कि वो क्या हम किसी रूहुल कुदस को मानते हैं जो भी जिन्होंने अभी आना है, तो फिर हम उनके पीछे होंगे? जी बात दरअसल ये है कि सर, बात ही मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है, सीधी सी मैं बात करूँगा, और मैंने अपने आप को एक निज़ाम के हवाले किया हुआ है, ठीक है जी। ठीक है। और ठीक है, मेरे उस निज़ाम से मेरे भी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, उसकी सिलेक्शन के तरीके पर भी हो सकते हैं, हर चीज़ पर एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि हमें एक लीडरशिप की ज़रूरत है, और क्या कहते हैं, हम उसके बगैर नहीं रह सकते थे, और उस लीडरशिप ने बहुत ज़बरदस्त काम भी किया और प्रूव भी किया। अगर ना उन्होंने किया होता तो हम आज, मैं और आप इस वक्त यहाँ पे ना बैठे होते, ठीक है ना जी। अभी यौम मुस्लिम आउद कल गुजरा है, आप देख लें कि कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है खलीफा सानी की, उन पर इतनी बातें ये लोग करते हैं। आप क्या मतलब कि कोई जमात दुनिया की ले आए, मतलब किसी मजहब की भी ले आए और कंपेयर करके दिखा दो। ये देखे ना कैसी कहानियां सुनाता है भाई। तुम्हारे पास क्या है? सारी उम्र मैं यौम मुस्लिम मौद मनाता रहूं, क्या करते थे हम? बैठ के
दोबारा हमने पकोड़े समोसे खाए, ये योम मुस्लिम मऊद। चलो ये भी ठीक हो गया। वो खातून बता रही थी, वो कह रही थी कि वो उससे पहले हम ठीक, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, मैंने आपकी किसी बात से इनकार नहीं किया। ठहर जाए जरा। ये जो कंट्रीब्यूशन मुस्लिम साहब ने की, यानी खुद ही अपनी तरफ से इतने ये कंट्रीब्यूशन बनी इसराइल पर फिरौन ने भी की थी, इसी तरह तंजीमें बनाई थी फिरौन ने। भाई जिल्लत और रुसवाई मिर्जायत का मुकद्दर है, हर जगह इनकी जिल्लत और रुसवाई हो रही है, इनके अंदर से जिल्लत और रुसवाई निकल रही है। तो ये कहता रहे कि जी नहीं हम तो बड़ी ऊंची चीज है, बड़ी। अच्छा यार, आप तारिक चौहान ये बता दें कि आपके जम्बा साहब जो कि मुजद्दद, एक मिनट ठहर जाएं सर, एक मिनट ठहरिएगा। तारिक चौहान साहब की कोई ऐसी मार्कातुल्लारा तहरीर हमारे सामने रख दें, मैं पढ़ के आ जाता हूँ, उसमें से मेरा इम्तिहान भी ले लेना। रखो यार कोई तहरीर। तो ये मिर्जा साहब की 85 किताबें तो आपको पढ़ने की तौफीक नहीं हुई सर। जम्बा साहब की आप कहाँ पढ़ेंगे? अभी आप कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये खिलाफत चाहिए, ये आपका हाल है, ये आपकी यार दलील है। पता नहीं आप बात को कहा, मैं आपसे लड़ाई खत्म करने के लिए आपकी हाँ में हाँ भी मिला दूं, आप तो ऐसी भाई आप क्या लड़ाई खत्म कर, अभी आपने कहा आपको ईमानियात से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको मिर्जा साहब की तालीम से कुछ वास्ता नहीं है, कोई असर होना। आप अभी आपने कहा आपका ईमानियात से कुछ वास्ता नहीं, मिर्जा साहब की तालीम से कुछ वास्ता नहीं है, आपके पास कोई हवाला नहीं है, आप सिर्फ चाहते हैं कि आप खिलाफत के साथ रहें। चले प्यारे भाई, आप हमें हिदायत का रास्ता बता दें, मैं आपके रास्ते पर चल पड़ूंगा। बताएं हिदायत का रास्ता तो अल्लाह ताला ने बता दिया 1400 साल पहले, इन्नद दीन इंदल्लाहि आपको तारक भाई की जो है वो फेवर चाहिए तो एक ही तरीका है, जम्बा साहब को मान लें। तारक भाई आपके भाई, बल्कि बड़े भाई, मैंने इनको यही दरख्वास्त की कि जम्बा साहब की कोई तहरीर बता दें। जम्बा साहब को मान लें, तो जब उसको पता ही कुछ नहीं हुआ, जम्बा साहब को मान के हमने उसका क्या करवाना है? सर आपको जो पता है उसकी कोई अच्छी सी तहरीर ही बता दें, कोई छोटा सा एक सफ़े का नोट ही लिख लें। हाँ तो अभी मिर्जा साहब की मैंने तहरीर पढ़ी, आपको पता था इस तहरीर का? नहीं मैंने नहीं। मुजद्दद रूहुल कुदस पाकर आता है, अल्लाह ताला से वही पाता है, नायब रसूलुल्लाह होता है, कमालात नबुव्वत उसको दिए जाते हैं, आपको पता था इसका? नायब इमाम, ये आपकी हालत है। मिर्जा साहब के नायब 85 किताबां पढ़ियां नहीं तो नवे दी सानू तहरीर दे दियो। आपने नवी किस्म का मुजद्दद बना लिया है जो मिर्जा साहब को भी बीच में डालता है, जिसका रसूलुल्लाह से डायरेक्ट कुछ है ही नहीं वास्ता। वो नई किस्म वो हदीस मुजद्ददीन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो फिर जम्बा साहब ने नहीं बनाई ना मिर्जा साहब ने बनाई। गुलाम अहमद से क्या आयत इस्तखलाफ अल्लाह ताला ने लिखी हुई है, आपने नवी किस्म कुरान में, जो इमाम वो मिर्जा साहब ने बनाई थी आयत इस्तखलाफ। मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आपका पता नहीं कैसा मुजद्दद है जो दो बंदों का मुजद्दद है। एक बंदे का मुजद्दद है ही नहीं, दो बंदों का मुजद्दद है। वो रसूलुल्लाह का भी मुजद्दद है, वो मिर्जा साहब का भी मुजद्दद है। ये कैसा मुजद्दद हुआ भाई? ये है इनकी अकल। तो मिर्जा साहब कैसे हो गए उनके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास? क्या है सबूत? क्या सबूत है? इब्ने चिराग बीबी इब्ने मरियम कैसे हो गया, ये बताएं। इस्तखलाफ से, आयत इस्तखलाफ से नहीं, आयत इस्तखलाफ में मिर्जा साहब का नाम लिखा हुआ है, तो आपके जम्बा साहब का नाम लिखा हुआ है। हाँ तो यही आप इतराज कर रहे हैं साहब का मिर्जा साहब यही इतराज कर रहे हैं, मिर्जा साहब भी जाते लगते हैं और बाकी सारे भी जाते लगते हैं। यार मेरी बात सुने, बच्चों वाली बहसें करते हैं। इस्तखलाफ में मिर्जा साहब का नाम लिखा हुआ है। शुरू में ना सीधी सी बात बता दी थी कि आप लोगों के पास ताकत ही नहीं है चीज संभालने की। मेरी बात सुने भाई, मैंने मेरी बात तो सुन ले, ये मयार कहाँ से लिया आपने? एक मिनट, सदाकत का ये मयार कहाँ से लिया? सर मेरी बात सुने, आप एक स्कूल मास्टर हो, आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए हो, आप कभी जागीरदार अकल देखें मिर्जा, कहानियां सुन लो इनकी, कहानियां इनको मर्जी यार आप लोगों की कहानियां भाई हदीस पेश करो, कुरान पेश करो जिसमें लिखा हो, सुनाएंगे कहानियां। कुरान पेश करो जिसमें लिखा हो कोई आए खुदा की तरफ से, जाकर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है कि नहीं है तो बस तुम उसको ना मानो। ये है आपका मयार? कहाँ लिखा हुआ? मिर्जा साहब ने लिखा है, कुरान लिखा, हदीस में लिखा है। सर जो तजदीद करने वो आए हैं वो मुजद्दद हैं, उन्होंने कोई बेहतरी की है? वो कोई तारिक चौहान साहब, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हो, कितने उनके पास कितना बड़ा सिस्टम था, वो शहीद हो गए। ये क्या, ये कब से ये इसने शोर डाला हुआ है? कौन सा मारा है इसने? वक़्त का ज़िया, अकल का अंधा आबाद इंसान, बस। और यार एक तो एक आप अजीब से इनके पास एक भी हवाला नहीं होता। नहीं, वो कहते हैं मानिया से मेरा तल्लुक। मिर्जा महमूद साहब भाई, ये तो फिरौन ने भी कंट्रीब्यूशन की थी, बनी इसराइल इसी तरह बनाई थी। एक अकबर खान साहब एक मिनट दे, 3 बंदे पे आ जाते हैं, एक एक करके आओ। हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं इसलिए चुप कराया मैंने। सिर्फ अपना टॉक मास्टर जी, आपका जो सवाल था
اس کا جواب دیا طارق چوہان صاحب نے. جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب واٹر بھائی نے دیا ہے. نہیں، واٹر بھائی شاید اس سوال سے گزرے نہیں ہیں، اس لیے نہیں دے سکے. تو دینا ٹاک چاہیے نا مارسٹر انہیں صاحب جواب، وہ تو اصل بات ہے. ٹاک مارسٹر صاحب تساں کیا ہے کہ جواب نہیں دے تین سکتے، بندے پی جاندے نے انہوں نے بتا او دیا. سور چنگا موٹا ہوئے نا تے تین کتے چھڑنے پیندے نے. اچھا کتے ٹھیک ہے، بد نہیں بھائی، کم از کم اپنی عمر دا خیال کر لیا کرو. نہیں وہ میں طارق یہ چوہان دسو، صاحب دی عمر کنی زیادہ ہے، میں تہاڈے تو کنا چھوٹا ہے، تسی کہہ رہے ہو تین بندے پی جاندے ہو. آہو تے تسی اپنے آپ نے کتا بنائی جا رہے، ادھا نہ کرو، لوکی شیر مار دینے تانوں، نہ کرو. نہیں پینے پیندا کون ہے، کتے ہی پیندے نے. اور کہ میں کھول کے گل دس دیتی ہے بھائی، نہیں، ایک پاسے سور سور موٹا ہوئے بناتا نا ہے، تے پھر تین کتے چھڑنے پیندے نے. دیکھو ایک پاسے سے سور بناتا دوسرا کتے کو آتے، نہ کرو، اسی لوگ انسان ہیں، تسی بھی. بات یہ ہے کہ تے یہ کہہ پھر رہے ہیں تہاڈوں جی سوچنا چاہیے سی نا کہندے کہ ہیں کہ جمبا پیندے. صاحب کا ہمیں یہ مرزا صاحب سوچنا سے کیا چاہیے سی نا. تعلق ہے. وہ تو مرزا صاحب نے خود لکھ دیا ہوا ہے کہ میری ذریت میں سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا، جس کے لیے مرزا طاہر احمد صاحب دعا کر رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ وہ وجود مجھے ہی بنا دے. بھائی بتایا وہ خاتم الخلفاء تھے، آئندہ جتنے بھی مجدد آئیں گے وہ ان کے ذل میں ذلی ہوں گے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے. یہ تعلق ہے مرزا صاحب کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں واٹر بھائی دونوں مل کے تو طارق بھائی کی بات مان کے جمبا صاحب کو مان کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، کیا ہمیں چلو ملتا جی ہے. اسی تے من لے، شکر الحمدللہ ساڈا تے دین سیدھا ہو گیا مرزا صاحب دی دین دے مطابق. کیا تے اسی ہمیں چلے ہیں، ملتا ساڈی ہے. ٹیکسی آ گئی، اسی چلے ہیں ہن. اللہ حافظ. طارق چوہان صاحب جانن تے واٹر صاحب جانن. بڑی واٹر صاحب مہربانی سر، ہم بڑی دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں وہاں سے ملتا ہے اور کیا ہم کھوتے ہیں. جی ٹاک ماسٹر صاحب، بات دراصل یہ ہے. مین موٹی تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ٹاک ماسٹر جی جو آپ نے تحریر پڑھی تھی وہ مرزا صاحب کی تحریر ہے جو آپ نے پڑھی. اس تحریر کے اوپر پہلے تو آپ اپنا موقف دیں نا. آپ نے بھی تو وہی تحریر پڑھی ہے جو آپ بھی مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں. اس تحریر سے آپ کیا مطلب سمجھیں؟ طارق صاحب نے اپنا موقف دیا، آپ اپنا دیں، واٹر بھائی اپنا موقف دیں. انج اتنا جان چھڑاؤ نا کہ طارق صاحب کو موقف لے لیا تو تسا دونوں بہ گئے ہو چپ کر کے. یہ چنگی گل نہیں نا. جی یار بات یہ ہے ولید بھائی، یہ آپ نے مجھ پر سختی کی ہے، تشدد کیا ہے. بات یہ ہے کہ میں بھی تو سوال کر رہا ہوں نا واٹر بھائی سے. طارق بھائی کا یہ کویسچن ہے، یہ دراصل میرا کویسچن نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تحریر پڑھی جس میں لکھا ہے کہ بھئی آپ لوگ مل کے کام کریں گے اس وقت تک جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کے نہ آ جائے. اس کا مطلب بتا دیں. اچھا، اب یہ ہے کہ خدا سے روح القدس پا کے نہ آ جائے کا تو صاف مطلب ہے کہ کسی مجدد کی بات ہو رہی ہے، کسی معمور من اللہ کی بات ہو رہی ہے، یا پھر کسی ایسے بندے کی بات ہو رہی ہے جس کا تعلق، یعنی وہی معمور من اللہ والی بات ہے کہ خدا کوئی ایسا بندہ پیدا کرے یہاں پر جو لوگوں کو سیدھی راہ پر گامزن کر سکے خدا سے ہدایت پا کر. یعنی وہ اس کو خدا سے ہدایت پانی جو ہے نا اس میں ضروری ہے. اب جو ہمارے خلفاء ہیں وہ خدا سے ہدایت پاتے ہیں یا نہیں مجھے اتنا معلوم نہیں ہے، واٹر بھائی کو بھی معلوم نہیں ہے. اور روح القدس جو ہے اب اس کا جو ہے وہ میں انتظار کروں یا خلافت میں رہوں، مجھے خود پتہ نہیں ہے. تو آپ مجھے کیوں کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ واٹر بھائی ہے نا. جی ٹاک ماسٹر بھائی، میں آپ کو ایک بڑا اچھا سا مشورہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی زیادہ بحث کرنے کے بعد صرف ایک اعتراض نکالا ہے کہ وہ ایک خاندان میں خلافت کیوں چل رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اتنا چھوٹا سا اعتراض تو کسی پر بھی کیا جا سکتا ہے. کل کو اگلا خلیفہ اگر اس خاندان میں سے نہیں آتا تو بس ان کا اعتراض خود بخود ہی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. نہیں، ختم نہیں ہونے والا. نہیں ٹاک ماسٹر آپ دیکھیں کہ کتنی لمبی ایک گفتگو ہوئی ہے، اس میں سے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا ہے. یہ دیکھیں، یہ عقل دیکھ لیں. اس ایک خاندان میں یہ خلافت کیوں چل رہی ہے، یہ ابھی تک انہوں نے سوال کیا تو نہیں تھا. گدی بار بار کہہ رہے ہیں نا جی، گدی بنا لی. اچھا بھائیو ایک منٹ دینا، ایک منٹ او بھائیو ایک منٹ دینا، بھائیو ایک منٹ دینا. نیچے میسج ایک آیا ہے پیر صاحب کا کہ مجھے کیوں اتارا جا رہا ہے. نہیں پیر صاحب آپ کو کسی نے بھی نہیں اتارا، آپ دوبارہ آئیں، یہ کچھ اور مسئلہ ہوا ہے. پیر صاحب آپ براڑ سے باہر نکل کے دوبارہ آئیں تو دوسرا نمبر پہ سارے سن لیں. میرے مونیٹر بھائی ولید بھائی، پیر صاحب اور عامر بھائی کے علاوہ مسلمانوں میں سے 3 بندوں کے علاوہ کوئی آپ نے بندہ نہیں اٹھانا.
लड़ाई बिल्कुल नहीं किसी की करानी, मॉनिटर बने हैं, मैंने बकाया सबको खत्म कर देना है। मुसलमानों में से आप लोग 3 उठाएंगे, बकाया मैं खुद उठा लूंगा। अब एक मिनट वलीद भाई, मुसलमानों में से सिर्फ पीर साहब आमर भाई और वलीद भाई, बकाया किसी मुसलमान को ऊपर नहीं उठाना, मैं खुद उठाऊंगा। पीर साहब को इमरान भाई ने कॉल डाली है ना, ये इमरान भाई को मैं खुद उठाऊंगा, ये मलक इमरान ने कॉल डाली है, इसको मैं खुद उठा लूंगा। आप में किसी ने नहीं उठाना। देखिए कोई झगड़े वाली बात नहीं है, मुझे वैसे भी सुनना है, नीचे बैठना है। तो अली साहब ने डाला था, मैं ऊपर आया, मुझे उतार दिया गया पहले भी, अभी फिर मैं आया हूँ, मैंने कॉल नहीं डाली, मैं सुन रहा हूँ। तो अली साहब ने, मैंने कहा चले ठीक है, ऊपर फिर उतारा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ ये कौन कर रहा है? नहीं पीर साहब किसी ने भी नहीं उतारा, वो मैं भी ऐसे उतर गया था। वो अक्सर औकात नेट का इशू होता है, बंदा ऑटोमेटिकली वो डिस्कनेक्ट होता है। हाँ मुमकिन है, ऐसे भी हो, मुमकिन है। वैसे मुझे अभी सुनना है, मैं नीचे जाता हूँ, मुझे मत उठाइए, जरूरत होगी मैं नहीं बैठे नहीं, हकीकत मान लीजिए, मेरी बात सुनिए, हकीकत में मुझे सुनना है। अभी मैं आधे घंटे के बाद फारिग होता हूँ, फिर कॉल डाल लेता हूँ, मैं नीचे सुनता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक। अच्छा टॉक मास्टर जी, अब जो आपकी बात हो रही थी, उस बात के अंदर सिर्फ थोड़ा सा ये अर्ज कर दें कि ये जो आपने कहा है कि रूहुल कुदस पाकर, इससे मिर्जा साहब की क्या मुराद थी, या आपने इससे क्या समझा है, वो बता दें, वो एक्सप्लेन कर दें सिर्फ, या आप मिर्जा साहब की इस तहरीर से कुछ नहीं समझ पाए? नहीं मोहम्मद वलीद भाई, ये तहरीर तारिक भाई ने पढ़ी है और मैंने ये पढ़ी नहीं, मुझे इसके सियाको सबाक का नहीं पता कि इसके बारे में मजीद जो है वो क्या कहा गया है, कि क्या रूहुल कुदस है और किसका हम इंतज़ार करें और क्यों इंतज़ार करें। ये सारी चीज़ों का मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतनी सी तहरीर का एक टोटा तारिक भाई ने दिया है। इसके बारे में मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता। अगर आप मजबूर करेंगे तो मुझे वो देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें ज़ाहिर है मैं आप कुछ नहीं कह सकता। जी नहीं, वो जरूर देखें ना तारिक टॉक मास्टर जी, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो तारिक चौहान साहब तकरीबन हर बार ही पेश करते हैं। मतलब 6 माह में मैंने तो देखा है, ये तकरीबन रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन जरूर पेश करते हैं। बेहतर, तो इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए ना। बेहतर तो ये होगा कि तारिक भाई खुद पहले अहमदी थे और इनको ज़रूर पता होगा कि इसके अगेंस्ट कोई सियाको सबाक है कि नहीं, जो कुछ ये पेश कर रहे हैं तारिक भाई। कि एक तो ये कि मेरे बाद जो है वो अमीर तो बना दिए जाएं और सब मिल के काम करें, यानी एक खलीफा की बात तारिक भाई नहीं बता रहे, बल्कि ये बता रहे हैं कि अंजुमन होगी और उस अंजुमन के तहत अमीर मुकर्रर होंगे मुख्तलिफ जमातों के, और फिर वो मिलकर काम करेंगे तावक्ते के खुदा से कोई रूहुल कुदस पाके ना आ जाए। इसके बारे में मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये तारिक भाई चूँकि इन्होंने यही सवाल उन्होंने पेश किया था, तो ईमानदारी की बात ये है कि वो ये भी बता दें कि ये आखिर फिर खिलाफत जो है वो यानी शुरू जो हुई है वो क्यों शुरू हुई है, यानी पहले खलीफा से लेकर। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जब से खिलाफत कायम हुई है, मगर जो पहले खलीफा नूरुद्दीन थे वो फौत होने के मान बाद कैसे सिलेक्ट हुए उनका पहले बताएं, बाकी जो उनके बेटे वगैरह थे उनका बाद में बताएं। जी नहीं, असल बात यह है कि अगर आप खलीफों की बयान ना सुने ना, मिर्ज़ा ताहिर ने बयान दिया था 1993 में अगस्त में, ये जिसमें मुजद्दद का जिक्र है, और मिर्ज़ा मसूर साहब ने 2011 का उनका है मुजद्दद का जिक्र है। वहाँ पे वो जो अलवसीयत का ये पढ़ते हैं ना इक्तबात, उसमें ये वाला फ़िक्रा ही खा जाते हैं। जहाँ जहाँ इनकी तहरीर आप देखेंगे ना अलवसीयत की, उस वक्त तक मिलकर काम करो जब तक कोई खुदा, ये वाला फ़िक्रा ही नहीं वो बोलते, क्योंकि उनको पता है कि ये फ़िक्रा हमारी गद्दी के लिए एक मौत है। आप मिर्ज़ा मसरूर का पढ़ लें बयान, आप मिर्ज़ा ताहिर का बयान पढ़ लें, आप इनके मुरब्बियों का पढ़ लें, वो यहाँ तक बात करेंगे अलवसीयत की, उसके बाद ये जो फ़िक्र है ना वो बोलते ही नहीं है, खा चुके हैं वो। तारिक भाई, खलीफा नूरुद्दीन जब पहले खलीफा बने थे तो उस वक्त भी ये तहरीर तो मौजूद थी, वो कैसे खलीफा बने उसके बारे में बताएं। भाई वो पहले खलीफा वो सदर अंजुमन अहमदिया थे,
और मिर्ज़ा साहब अंजुमन को अपनी जानशीन बना के गए थे, अलवसीयत में उन्होंने लिखा था। तो चूँकि वो सदर थे इसलिए वो अंजुमन के सदर की हैसियत से वो पहले ही सरबराह थे, उसके उनके मुतफिक थे वो सारे लोग। तो वो मिर्ज़ा साहब के वो बड़े अच्छे कंपेनियन भी थे, इसलिए वो जानशीन बन गए। लेकिन वो रूहुल कुदस पाकर खड़ा होने वाले उन्होंने कभी नहीं कहा, बल्कि उनके वक्त में कुदरत सानिया के जल्द ज़हूर के लिए दुआएं होती रही एक लंबा अरसा। एक तारीख़ अहमदियत खुद लिखा हुआ है उसमें। तो इसका मैं ये मतलब कह है कि रहा हूँ मिर्ज़ा हकीम नूरुद्दीन साहब अपने आप को कुदरत सानिया का मदर नहीं थे समझते। तारिक भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जब खलीफा नूरुद्दीन बने थे, आप कहते हैं कि अंजुमन बनाई गई थी हज़रत मसीह मौद के बयान करदा तरीके पर अंजुमन बनाई गई थी, उसका सरबराह तो बनाने की बात नहीं हुई ना। वो तो मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ अमीर होने थे। हाँ क्या उन सरबराह को खलीफा कहा जा सकता था? क्योंकि उनको तो खलीफा कहा गया था उस वक्त। मैं यही कह रहा हूँ ना कि मिर्ज़ा साहब ने तो अपने पास कोई खिलाफत का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने मगर लिखा है मगर चूंकि मगर तारिक अंजुमन भाई, खुदा के मुकर्रर करदा खलीफा की जानशीन है, इसलिए अंजुमन को दुनियादारी के रंगों से बकुली पाक रहना होगा और उसके तमाम मामलात नए साफ और इंसाफ पर मबनी होने चाहिए। रोहानी ख़ज़ाइन जिल्द 20 सफ़ा 325। अब मिर्ज़ा साहब तो अंजुमन का बना के गए, ये खलीफा और खिलाफत का क्या चक्कर बना? ये तो जाहिर है कि मिर्ज़ा साहब की तालीम के खिलाफ बात थी ना। वो एक जब सदर मसीह अंजुमन मौद ने अहमदिया थे, वो बस जब वही मसीह मौद रहते। ने अंजुमन बना दी थी तो क्या उनका कोई सरबराह था अंजुमन का? हाँ, सदर अंजुमन था ना, वो हकीम नूरुद्दीन साहब थे। नहीं, वो भी सदर मिर्ज़ा साहब अंजुमन ने तो कायम बाद किया में था। बने ना। हैं? अंजुमन बनाई किसने थी? मिर्ज़ा साहब ने। तो उस वक्त जब मिर्जा साहब ने बनाई थी, सरबराह कौन था? हकीम नूरुद्दीन। उस वक्त भी हकीम नूरुद्दीन थे हाँ, जब वो उन्होंने सदर बनाई। अंजुमन थे ना, वो सदर अंजुमन थे। अच्छा, उनको फिर खलीफा क्यों कहा गया? हाँ, ये क्यों कहा गया इसकी कोई जवाब नहीं है, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। देखे ना लाहौरी जमात उस में वक्त उस वक्त तो गद्दी इख्तलाफ पैदा नशीनी हो का गया। मसला नहीं था ना तारक भाई। उस वक्त तो कोई उनका कोई बेटा तो खलीफा नहीं था ना। खलीफा नूरुद्दीन थे हाँ ना, जी, वो किसी मोख तो खानदान में से थे ही नहीं, तो उनको खलीफा क्यों कहा गया? तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि खलीफा कहते हैं जानशीन को। एक खलीफा वो होता है जो मिनहाज नबूवत पे होता है, वो बिल्कुल और खलीफा है, वो अल्लाह ताला से वही पाकर आता है। तो एक जानशीन का खलीफा खलीफा आप मानते हैं उनको? है, जानशीन का खलीफा आप मानते हैं तब उनको, खलीफा नूरुद्दीन को? नहीं, हम ये कहते हैं कि देखें अलवसीयत में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि मेरे बाद खिलाफत कायम कर लेना। उन्होंने कहा अंजुमन एक में मिनट ठहर जाए, है। एक मिनट ठहर जाए। हजरत मसीह मौद ने खलीफा नूरुद्दीन को सदर बना दिया अंजुमन का। जी, ठीक है, आप मानते हैं इसको? हाँ जी, वो अंजुमन के खलीफा थे। अंजुमन के सदर थे, खलीफा कैसे हो गए? भाई जब मसीह मौद नहीं रहे तो वो खलीफा ही होंगे ना उस रंग में। तो कैसे हो गए? मुताबिक फिर तो जानशीन की जरूरत नहीं थी, एक मिनट, अंजुमन ने मिल के काम चलाना था। जब अंजुमन जानशीन थी तो उसका सरबराह क्या हुआ? वो अंजुमन का सदर हुआ। तो वो और मिर्जा साहब का अंजुमन जो है वो जानशीन तो ना जानशीन हुआ। है। अंजुमन आज जानशीन है। हाँ, देखें तारक भाई, अंजुमन 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 जो है वो जानशीन है, उसका सरबराह जानशीन आला हुआ ना। नहीं, उसी जानशीन अंजुमन का जो सदर है तो वो सदर अंजुमन अहमदिया उसको कहते थे, उसको खलीफा अंजुमन अहमदिया तो नहीं कहते थे। देखें मेरी बात सुने, जो अंजुमन है वो किसकी जानशीन है? मसीह मौद की। जी, अच्छा, और उसका सदर जानशीन आला हो गया। जानशीन आला वो भी जानशीन हो गया ना। ये तो नहीं ना कि सदर अंजुमन तो जानशीन है। हाँ, वो मतलब वो अंजुमन का हिस्सा है ना, सदर भी जो है, सदर भी अंजुमन का हिस्सा है। हाँ, तो वो तो जानशीन में आ गया ना। हाँ, तो जानशीन को खलीफा कहते हैं। हाँ, तो ये कहना कि एक शख्स खलीफा है, बाकी जो लोग हैं वो उनकी कोई औकात नहीं है, वो खलीफा जो है वो वही फैसला करेगा। तो इसका मतलब है कि जो 14 बंदों की जो जानशीन अंजुमन है उसका तो फिर ख़त्म हो गया ना डिग्निटी।
अगर आपने नहीं ये साबित कर दिया कि एक ही शख्स है जो फैसले करेगा, तो फिर उसने देखें अंजुमन से तो नहीं पूछना। देखें ना, जानशीन का फैसले, वो जो फैसले हैं वो एक शख्स करेगा या पूरी अंजुमन करेगी, ये तो बात की बात है। नहीं मैं तो ये कह रहा अंजुमन हूँ कि जानशीन, इसका क्या मतलब है? जब मिल के फैसलों फैसले के करने हैं। लिए जब फैसलों के लिए अंजुमन बनाई गई, हाँ अब अंजुमन ने फैसले करने हैं, हाँ, तो उसका जो सरबराह है उसको इग्नोर किया जा सकता है? इस सरबराह ऐसे ही है। देखें, कोई कमेटी बनाई जाए, उसका एक प्रेसिडेंट होगा, एक सेक्रेटरी होगा। हाँ, तो सजेशन सारे देंगे, हाँ उसकी रिकमेंडेशन तो हाँ, उसका सदर ही लेकिन देगा। अगर आप उसको कहें कि ये खलीफा है, इसका मतलब है कि वो तो फिर आजाद है ना, वो तो किसी से नहीं, मशवरा करने की उसको एक जरूरत दफा नहीं है, एक किसी एक का दफा माने आप मशवरा ना माने। एक दफा आप ना खलीफा का लफ्ज को छोड़ दें, अंजुमन जो है वो फैसले करेगी, ठीक है, और जब वो फैसले करेगी तो उनकी रिकमेंडेशन उसका सदर ही देगा ना, तो उसका जो अंजुमन की जो फैसले मेरी हैं। बात सुने यार, टाक मास्टर, क्या बात है? सदर अंजुमन जो होता है ना, वो इंतज़ामी मामलात को देखने के लिए होता है कि मतलब प्रोटोकॉल एजेंडे के मुताबिक बात हो, किसको आपने कहना कि जी हाँ अब आप बोलो, अब आप बोलो, ये इसलिए होता है। लेकिन ये तो नहीं होता कि वो मतलब उसमें से वो कोई अलहदा होता है, उसका ओके, कोई अलहदा अगर स्टेटस है। अगर उसने अंजुमन कोई कोई भी फैसला बात करनी करती है है, और उसने सबसे मशवरे से करनी है। हाँ, तो वो जो सबसे मशवरा हो जाता है हाँ और मोहतात जो है वो उसमें जिस मशवरे पर ज़्यादा होती है, तो उसको लागू करने के लिए सदर अंजुमन की ज़रूरत पड़ेगी, वो खाली बोतल तो नहीं है ना। तो सदर अंजुमन, वही मैं कह रहा हूँ ना कि उसका एक इंतज़ामी ओहदा है वो सदर अंजुमन का, ओके, वो कोई तो उस रूहानी पेशवा तो इंतज़ामी नहीं है ओहदे, ना। सदर अंजुमन खुद एक इंतज़ामी मामला है ना, हाँ तो सदर अंजुमन जो है वो बनी जानशीन हज़रत मसीह मौद की और उसका सरबराह बड़ा जानशीन, हाँ इसमें आपको क्या एतराज़ है? हाँ, तो लेकिन वो खलीफा तो नहीं है ना। और फिर नहीं, आप वही बात खिलाफत है। के वो, नहीं आप ना एक तरफ तो उसको खलीफा कह देते हैं जानशीन को, अब ये खिलाफत हाँ, तो जब मैं कहता जानशीन हूँ खलीफा होता है जानशीन, भी, जानशीन को आप खलीफा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मसला है, मेरी बात सुने, जो बीच में जो प्रॉब्लम है वो ये है, मिर्ज़ाई कहते हैं मिर्ज़ा हकीम नूरुद्दीन खलीफा अला मिनहाज नबूवत थे, क्योंकि उन्होंने मिनहाज नबूवत शुरू की है ना। और खलीफा अला मिनहाज नबूवत हकीम नूरुद्दीन नहीं थे ना, उन्होंने इसका कहा, क्योंकि मिर्ज़ा साहब के मुताबिक खलीफा अला मिनहाज नबूवत अल्लाह से वही पाकर आता है और सदी के सर पर आता है। तो फिलहाल हकीम आप नूरुद्दीन मिनहाज तो वो नहीं नबूवत थे को ना। भी छोड़ दें। आप उनको खलीफा कहें या कुछ और कह दें, जो मर्जी कह लें, लेकिन उनका डेजिग्नेशन वो नहीं है जो नहीं मिनहाज आप नबूवत पे आने कहेंगे, वाले का होता आप है। तारिक तो खान इसीलिए साहब, कहा इस कि उस वक्त इक़्तिबास तक में एक मिलकर, और भी काबिल और बात उस है। वक्त तक मिलकर काम करो जब तक को खुदा दूसरी से रूह कुदरत पाकर खड़ा ना हो। बात ये है तारिक भाई कि कुदरत सानिया का जो क़याम है वो क़यामत तक रहेगा। वो एक ही सूरत में रह सकता है, अगर मिर्ज़ा साहब की तालीमात को देखा जाए तो मुजद्दद की सूरत में। अगर ये और कहें कि मिर्ज़ा साहब ने खुद कहा है कि मैं 13वां तो खलीफा हूँ, क़यामत ये तक रहेगी, ये आयत इस्तखलाफ के तो फिर मुताबिक क़यामत नबूवत तक बन जारी गई। है। अभी होगी आपकी मेन बात। प्रॉब्लम यहाँ होती है, हकीम नूरुद्दीन को खलीफा मान लें, लेकिन ये बात तो कैंसिल ही ना हो जाती कि भी जब तक उस वक्त तक मिलकर काम करो जब तक को खुदा से रूहुल कुदस पाकर खड़ा ना हो। लेकिन मिर्ज़ाई तो इस हिस्से का इनकार करते हैं ना, वो कहते हैं बस वो मिनहाज नबूवत जो रूहुल कुदस पाकर खड़ा होना था वो शुरू हो गई, वो हकीम नूरुद्दीन थे, उसके बाद फिर हमारी गद्दी चल रही है। अच्छा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा वो करते हैं कि मिर्ज़ा हकीम नूरुद्दीन वही खलीफा अला मिनहाज नबूवत है जो एक नबी के बाद आता है। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने तो नबूवत का दावा ही नहीं किया, वो तो खुद कह रहे हैं मैं खलीफा तो रसूल हूँ, 13वां अच्छा, खलीफा हूँ, 12 उनसे अच्छा पहले गुजर तारिक चुके भाई, हैं उन जैसे। जी तारिक भाई, बात यह है कि इसका मतलब है कि खलीफा नूरुद्दीन जो थे वो मसीह मौद के बताए हुए सदर अंजुमन जो सदर अंजुमन थे, और वो अंजुमन जिसने फैसले करने थे और जिसने जानशीन बनना था, तो उसका सरबराह भी जानशीन हुआ और जानशीन के तौर पर वो खलीफा ठहराए, क्योंकि नायब थे ना वो, तो खलीफा ठहराए। चले ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मसला ये है कि आइंदा जो ये उस वक्त तक चलेगा जब तक कोई खुदा से रूहुल कुदस पाके ना आ जाए, ठीक है, ये इतना ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। जब तक वो नहीं आता, वो खिलाफत जो थी सदर अंजुमन की सरबराही की, वो खिलाफत
नॉट मिनहाज नबूवत, वो खिलाफत जो सदर अंजुमन की सरबराही के तौर पर है वो फिर चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक रूहुल कुदस ना आ जाए। ये भी ठीक है ना? हाँ ये ठीक है, हाँ ठीक बात तो उसके जो है ना इस वक्त खलीफा खामस हैं और अभी नहीं। तक अब रूहुल देखें कुदस ये नहीं आप आई। गलत बात कर रहे हैं, या एक मिनट आपको मेरी इल्म नहीं बात है, तो सुन लेना, जानबूझकर मेरी आप बात सुन नादानी लेना, कर रहे हैं। मेरी पहले बात मेरी सुनिए। पूरी बात सुन लेना, बीच में ना टोके ना, मेरी बात सुन लेना। अभी वो पीरियड जारी है कि सदर अंजुमन मिल के काम करें उस वक्त तक जब तक रूहुल कुदस नहीं आती। अभी रूहुल कुदस आई नहीं, हमने किसी रूहुल कुदस को पहचाना नहीं है, लिहाजा खिलाफत चल रही है खलीफा खामस के तौर पर। जी अब आप बोलो। हाँ जी, यहाँ पे एक डंडी आपने ये मारी है, पता नहीं नादानी की वजह से या बेलमी की वजह से, कि हकीम नूरुद्दीन के मरने के बाद अंजुमन को ख़त्म कर दिया गया। आपको इसका इल्म है? जब अंजुमन ही ख़त्म कर दी तो उसी अंजुमन आज अंजुमन को तक आप कहाँ मौजूद लेके है चल रहे हैं? तारक वो तो भाई, आपने ख़त्म कर दिया उसको। आज तक मौजूद है अंजुमन। और नहीं भाई, वो वाली अंजुमन नहीं थी, उसको ख़त्म कर दिया गया था, वो स्प्लिट हो गई थी, आपस में इख्तलाफ पैदा हो गया था। लाहौरी जमात इसलिए बनी थी क्योंकि वो भी अंजुमन के मेंबर थे। मौलवी मोहम्मद अली साहब, ख्वाजा कमालुद्दीन साहब वो उसके वकील थे, मौलवी मोहम्मद अली साहब सेक्रेटरी थे उसके। तो वो वाली अंजुमन उन्होंने मिर्ज़ा हकीम नूरुद्दीन ने ख़त्म कर दी थी, क्योंकि वो अंजुमन हकीम मिर्ज़ा महमूद को खलीफा नहीं थी बना रही। वो तो कह रहे थे कि भी खिलाफत का कहीं जिक्र ही नहीं है, ये कोई है ही नहीं है। वो हमने हकीम नूरुद्दीन से उसको मान लिया, उस वक्त हालात ऐसे थे, मिर्ज़ा साहब की वफ़ात हुई थी, दुख में थे सारे, तो वो जी जैसे होता रहा मान लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, खिलाफत का कहीं जिक्र नहीं है। उसी वजह से वो अंजुमन ख़त्म हो गई, स्प्लिट हो गई। ये जो अंजुमन मिर्ज़ाइयों ने बनाई हुई है, ये वो वाली अंजुमन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खलीफा सदर नहीं है, यहाँ पे मुतलिकुल इनान है खलीफा। वो उसका अंजुमन से कोई ताल्लुक नहीं है। अंजुमन अपने मशवरे दे, वो माने ना माने, तो ये तो कोई अंजुमन का कोई नहीं है ना। और अंजुमन बनाई फिर उसने, वो वाली अंजुमन तो ख़त्म कर दी जो मिर्ज़ा साहब बना के गए थे, तो वो वाला सिस्टम ही उन्होंने ख़त्म कर दिया, नया सिस्टम बनाया। अब जैसे मिर्ज़ा हकीम मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने 1956 में जो खिलाफत हक्का इस्लामिया लिखी, वहाँ पे तो ये कह रहे हैं झगड़ा ये किस वजह से नई ये जो खिलाफत कायम करने की ज़रूरत पैदा हुई, क्योंकि हकीम नूरुद्दीन के बेटे अब्दुल वहाब अब्दुल मनान जो हैं वो कब्ज़ा करना चाहते हैं खिलाफत पर, और हम कहते हैं हमारी खिलाफत हमारे मिर्ज़ा ख़ानदान में चलेगी। ये साफ बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। इसी वजह से उन्होंने लिखा कि हम नए तर्ज पर इसको उस्तवार करना चाहते हैं, क्योंकि जो पुराना तर्ज था उसमें तो 2-4 लफंगे उठ के कह देंगे खलीफा मुंतखब हो गया, तो उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। और मजलिस शूरा, अब वो जो सिस्टम था वो भी हम ख़त्म कर रहे हैं। हमने नया तरीका ये देखा है कि पोप की तर्ज पर हम खिलाफत इस्तवार करेंगे। ये सारी बातें लिखी हुई है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, वो सब कुछ ऐसे लिखा हुआ। पोप की तर्ज पर हमने देखा कि हमने गौर किया और देखा कि ये बड़ा अच्छा तरीका है कि चंद लोग मिलके खलीफा मुंतखब कर लेते हैं और हम कह देते हैं खुदा ने खलीफा बना दिया। ये सारी बातें उन पर लिखी हुई हैं। यानी वो गद्दी खिलाफत की उसका मिर्ज़ा साहब से कोई ताल्लुक नहीं था, मजलिस शूरा करती, वो उन्होंने कहा कि वो तरीका मैं मनसूख करता हूँ। उन्होंने एक नई गद्दी बनाई अपने मिर्ज़ा ख़ानदान की, और उन्होंने कहा कि खुदा ने अबनाए फारिस को चुन लिया, यानी मिर्ज़ा ख़ानदान को, शैतान ने अब्दुल वहाब अब्दुल मनान हकीम नूरुद्दीन के बेटे को चुना है। तो वो कहते हैं कि जी हम इस वक्त हम चूँकि खुदा ने हमें चुना है अबनाए फारिस को, इसलिए अबनाए फारिस में ही चलेगी खिलाफत। तारिक भाई, तो इसका मतलब हुआ कि अंजुमन भी ठीक थी और उसकी सदर अंजुमन जो था वो भी ठीक था, यानी सरबराह अंजुमन वो भी ठीक था, मगर बाद में इस अंजुमन में कुछ तब्दीलियां कर दी गई और ये वो तब्दीलियां नहीं करने को, उसको तोड़ दिया गया, वो सिस्टम ही खत्म कर दिया गया। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात पूरी सुन लें तो फिर आप बोलें कि इस जो है अंजुमन है इसमें तब्दीली कर दी गई, तोड़ दिया गया या मरोड़ दिया गया, और उसके बाद फिर भी ये जो अंजुमन है ये कायम तो है ना। लेकिन आप कहते हैं कि ये जो कायम है अंजुमन ये वो वाली नहीं है, इसमें तब्दीलियां कर दी गई और सब सरबराह जो है अंजुमन वो भी मौजूद है, मगर वो उस तरह नहीं मौजूद जिस तरह के होना चाहिए था। आपका इतराज़ ये है। तो जब उस तरह नहीं मौजूद तो वो फिर वो वाली अंजुमन तो ना रही। मैं सुने तो आप खुद ही कह रहे हैं उस तरह नहीं मौजूद, उन्होंने नई बनाई है, और बनाई किसको है? बात तो आप बीच में बोल पड़ते हैं ना तो सारा वो मसला खराब हो जाता है ना तारक भाई।
तो मैं कौन सा कोई आपकी तरह लंबी तकरीर करूँगा। बात यह है कि आपके मुताबिक वो अंजुमन भी ठीक है, अंजुमन बनाई थी वो, हम तो अब भी मानते हैं कि वो अंजुमन है। आप कहते हैं कि इसमें तब्दीली कर दी गई, इसको तोड़कर कुछ अपनी तरीके से बना दी गई, और सरबराहियत जो है वो भी एक बंदे की, यानी कि उसमें मशवरे के बगैर एक बंदे की इजारादारी में कर दिया गया। गोया आपको अंजुमन और उसकी सरबराहियत पर कोई एतराज़ नहीं है, मगर उसके बिगड़ जाने पर एतराज़ है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? नहीं, पता नहीं अब क्या फायदा, मैं फिर नए सिरे से वही बात दोहराऊंगा। तो ठीक है, आप नहीं, तो अपनी आप इतनी बातें करते हैं कि जो काम की भाई बात कितनी है दफा सारी बात बताई है, और रूहुल कुद्स पे आके खड़ा होने वाला मुजद्दद सदी पे आना था, उसको तो नहीं ना मानना। है ना, इतनी सी बात है, उससे पहले कोई रूहुल सिस्टम कुद्स भी आप अभी बना तक के, नहीं आई ना। अगर आप रूहुल कुद्स आपका नहीं ना आया, हम्म, हाँ, तो बस आप चलाएं इसको, फिर आपका तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जब जिसने आना तक था वो तो आ गया। अब जब तक ऐसी है जैसे दूसरे मुसलमान इमाम मेहदी ईसा का इंतजार कर रहे हैं, आप भी वही चलाते रहे फिर अपने सिस्टम। तो जब तक हमें वो रूल कुदस नहीं मिलता, हाँ, आपको नहीं मिलेगा, हाँ बिल्कुल, उस आपको वक्त कभी तक भी नहीं तो मिलेगा। हमारी ये खिलाफत फिर ठीक हुई ना, हाँ सदर भी ठीक है, है, आप सदर। बिल्कुल आप चलाएं इसको, हाँ, हाँ, बस मैं आपका यही रूल कुदस नहीं आएगा, आपको हाँ जी। क्योंकि आप तो उसको मानते ही नहीं कि रूल कुदस की जरूरत है। आप कहते हैं डॉक्टर यही मास्टर क़यामत साहब तक चलेगा। उस मजमून को दोबारा पढ़ें। अगर रोल कुदस पाकर को खड़ा नहीं होता ना, फिर कोई भी बंदा जिस पर 40 बंदे इतफाक करें, वो एक नहीं, वो कई बंदे हो सकते हैं, ठीक है, और वो बंदा मिर्जा साहब के नाम की बैत ली। हाँ भाई, जितनी मेरी कैपेसिटी थी उतनी मैंने बात कर लिया। और पहली बात तो ये है कि मिर्जा साहब बार बार जो अपनी बैत लेने का कह रहे हैं, इसको भी मद्देनजर रखें। उन्होंने कहीं कहा है कि ये खलीफा भी अपनी बैत लेंगे। इस्लाम में खलीफा की भी बैत होती है। जी वलीद भाई, आपको क्या समझ आई? जी टॉक मास्टर साहब, अब मेरा ख्याल है कि आपकी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो चुकी होगी, और अगर मज़ीद आप 2-3 घंटे और चौहान साहब से बात करके मज़ीद अपने कम इल्मी दुनिया पर और अपने आप पर ज़ाहिर करना चाहते हैं तो मज़ीद इनसे कर लें। इतने आलिम बंदे का तो कहीं पे भी गुजारा नहीं हो सकता। तो मेरी दुआ है कि चौहान साहब जो है ना, ये जंबा साहब से खुश रहें। अल्लाह करे जी कि जंबा साहब वो शख्सियत साबित हों जिनसे चौहान साहब ज़िंदगी का कुछ अरसा। वही बात ये है कि चौहान भाई बड़े आदमी हैं, उन्होंने खिलाफत भी मान ली है, अंजुमन भी मान लिया है, सरबराह को जो है वो खलीफा भी कह दिया है, और अब क्या चाहते हैं वाटर भाई? अब रूहुल कुदस का सवाल रह गया, वो अभी तक हमने मिला नहीं, तो क्या करें? हाँ जी, नहीं आपने माशाल्लाह इनको बड़ा अच्छा कायल किया है। बिल्कुल मैं इस मुकाम पे नहीं जा सकता था। आप मुझे ये बताएं कि आपका प्रोफेशन क्या रहा है? वकील तो नहीं है आप? नहीं जी, मैं वकील नहीं हूँ, मैं मैकेनिक टाइप आदमी हूँ। आपने मतलब इतना अच्छा इनको समझाया है कि आपसे 3 स्टेप तक ये मान गए हैं। डॉक्टर मास्टर साहब देख लो, जो कुछ तुसा समझाया वो तो हमें पता ही है, ते चुगड़ नहीं ला पिया वाटर। मैं तो वलीद भाई का इंतजार कर रहा हूँ कि वलीद भाई को क्या समझ आई है। हमारे दुश्मनों को भी तो समझ आनी चाहिए ना कि क्या बात। अब मिर्जा साहब कह रहे हैं और चाहिए कि जमात के बुजुर्ग, यानी एक बुजुर्ग की वो बात नहीं कर रहे, और चाहिए कि जमात के बुजुर्ग जो नफ्स पाक रखते हैं, मेरे नाम पर मेरे बाद लोगों से बैत लें, ठीक है। और इसका अगर ये कह दिया जाए, हाँ, तारिक चौहान साहब को कह दिया जाए कि एक ही नफ्स पाक जो होगा जब बैत लेगा, तो बाकी तो सबके नफ्स ही गंदे हो गए। तारिक भाई मैं तैयार हूँ, आप मुझसे बैत ले लें। भाई आपसे बहस नहीं मैं कर रहा, आपने तो बता दिया ना कि आपका रोल कुदस पाकर नहीं आया अभी तक, तो वो ठीक है, वो आप फिर लगे रहे, फिर तो कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन जमात मिर्जाइया तो ये मानती नहीं कि रूहुल कुदस पाके किसी ने आना है, वो कहते हैं वो खत्म हो गया। तारिक चौहान साहब, मैं कहता हूँ आपने आज जो नुक्ता उठाया ना बेहतरीन, यानी इस वक्त सिर्फ जमात में पाक नफ्स जो है वो सिर्फ मिर्जा मसरूर है। अब्दुल्ला दी अपने ही बोली जो, क्योंकि वही ना बैत ले रहे हैं ना। तारिक चौहान साहब, मैं आपको ना एक मशवरा दूं, जब तक आप जंबा साहब के साथ रहेंगे ना, जंबा साहब के पास कोई बंदा नहीं आना।
यार ये आप अजीब बात करते हैं, यानी वैसी कहानियां जैसे आपने पहले सुनाई ना, इस तरह की आपकी कहानियां हैं। यानी आप ये समझते हैं कि हम लोगों को लाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए। भाई हमने सिर्फ अपनी बात बतानी है, जो मानता है ठीक है, वरना जहन्नम में जाए, हमें उससे क्या ना आए, कोई जरूरत नहीं हमें किसी की। चंबा साहब की कोई तहरीर है, आपसे पूछा था? कौन सी तहरीर? कोई तहरीर है, कोई किताब लिखी है? आपने जो मिर्जा साहब की तहरीर पढ़ी है? कोई पढ़ी है मिर्जा साहब की तहरीर? सर मैं जंबा साहब आपका ये हाल है कि आपको, आप कहते हैं ईमानियात का तो कोई ताल्लुक ही नहीं इससे, सिर्फ आप समझते हैं कि जी हमारा कोई सिस्टम होना चाहिए इसलिए मैं खलीफा को मानता हूँ। ये आपका ईमान का हाल है। जंबा साहब की तहरीर से आपको क्या फायदा होगा? मैंने आपको बिल्कुल ऐसे नहीं कहा, शख्स आपको उल्टी गुमराही बात उसको समझ मिलेगी आती है। उससे। मैं कोई फारसी नहीं बोलता, मैंने आपसे बिल्कुल सीधी बात की थी कि आप लोगों की तैयारी ही नहीं है, आप हमें हाँ, नहीं संभाल तो सकते, यही मैं कह इसलिए रहा हूँ आप ना, इसकी ख्वाहिश ना तो करें। जो सीधी बात मैंने की थी वो नहीं आपने बताई कि ये मयार कहाँ पे है। कुरान में है, हदीस में है, मिर्जा साहब की तहरीर में है। मुरसल आएगा, मुजद्दद आएगा, पहले जाकर सीधा सवाल उससे पूछो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अगर आप मुतमिन ना उसको छोड़ दो। कहाँ पे ये मयार जो आप बना यार रहे जब आपने हैं? अपने रबवी फुफड़ी मुरसल मयार का आपके हमें हैं सारे, तारुफ ही सही तरह नहीं करवाया, रबवा तो अब फुफड़ हम के क्या मयार करें? आपको बनाए हुए हैं। आपके अब पास हम कुछ क्या इल्म करें? नहीं आपने है, अपने ना आप मुरसल का कुछ म्यार ही नहीं सही मिर्जा बताया। साहब की तालीम पेश कर सकते हैं, ना कोई हदीस का इल्म आपको, ना कुरान का इल्म। सिर्फ ये कहानियां आपके पास हैं, अलफ लैलवी कहानियां। अगर ये हो जाएगा तो फलां हो जाएगा, अगर वो हो जाएगा। इस वक्त हमारा सिस्टम सबसे आला तरीन है, हर वक्त जिल्लत और रसवाई आपकी हो रही, आप सर लोग को जिस नजर नहीं चीज आता। की बात हो रही हो ना, तो उसी टेक्स कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगा ना। अब आप एक बात को उठाते हैं, K2 पे ले जाते हैं, फिर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ हाँ, जाते तो हैं, आप फिर भी पंजाब के माउंट मैदानों पे एवरेस्ट आ पे जा जाते रहे हैं। थे ना। आप कह रहे हैं मेरा ईमानियात से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई फिर आपका खुदा और रसूल से भी कोई ताल्लुक नहीं है, अगर ईमान से आपको कोई ताल्लुक नहीं है, फिर आपके साथ बात क्यों की जाए? आपके साथ तो बात करने का कोई तारिक फायदा साहब, नहीं है, आपने सुबह जिसको फजर पता की ही नहीं कि नमाज ईमान पढ़ी की है? क्या अहमियत है। आपने सुबह फजर की नमाज पढ़ी है? तुमने आज पढ़ी कुरान है? की तिलावत की थी? नहीं, क्यों नहीं की? मेरा दिन क्यों तो अभी जाके करो शुरू हो फिर। रहा है। और पढ़ मिर्जा लूंगा, साहब की लेकिन वो कोई उसके फर्ज तो बाद नहीं है मिर्जा ना। साहब की इक्तबास भी पढ़ना अलवसीयत का। फर्ज तो नहीं है ना, कुरान शरीफ की तिलावत फर्ज है। आपने पढ़ी है फजर की नमाज? मेरी तुमने ईमानियात मगरिब की चेक पढ़ी थी करने कल आप की? आ गए हैं? तुमने कल तारक मगरिब चौहान की साहब पढ़ी उन थी? पर वोक लगे उसके करें, बाद ईशा की पढ़ी थी, उन पर तहज्जुद वोक पढ़ी थी। लगे करें। फजूल। ये देखो जवाब यही भी कोई नहीं। तुम मिर्जाइयों ने यही शुरू किया है। ये आपने वो चार्ट बनाए होते, लोगों के घर भेजते हैं। खुतबा सुना था, कितनी दफा खुतबा सुना था, कितनी दफा ज़ोर को खत लिखा। यार आपने मेरे ये कहाँ लिखा ईमानियात हुआ पे है? गाली दी मुझे, मैंने ये आपको पकड़ लिया। कौन सी तालीम है? हुजूर को खत लिखना, ये कौन सी हदीस है? कौन सा कुरान में लिखा हुआ है? मैंने आपसे तो फर्ज पूछा है ये। आपने हजूर को खत लिखा? आप लोगों ने ये बनाया हुआ है, कितनी दफा हुजूर से खत लिखा। खुद ही सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब दे के अगले के मुंह में ठूंस रहे हैं। आप क्या बच्चे हैं यार? मुझे तो नहीं, समझ आप नहीं आ रही बच्चे हैं आपकी। जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं। मुझे तो आप कल लोगों की समझ सुबह नहीं आ फजर रही पढ़ी कि थी, कभी हमारी दोपहर ईमानियात को खत्म हो जोर जाती है, पढ़ी कभी थी, हमारी शाम दीनियात को खत्म असर हो पढ़ी जाती थी। है, ये कभी सवाल हमें है। दुनियावियात ये खत्म हो इल्मी जाती है। ये इल्मी डिस्कशन है। सुबह फजर पढ़ी थी। अच्छा आप मुझे बताइए, आपकी शादी हुई हुई है? आपकी हुई हुई है? हाँ जी, आपकी हुई तो हुई है। क्यों की आपने शादी? नहीं, आप मुझे बताएं, आपकी शादी हुई हुई गंदी है? औलाद आप खुद है, गंदी औलाद पैदा करने के लिए आपने शादी की है, बेईमान लोग पैदा करने के लिए, इसलिए की बड़ी है आपने प्यारी शादी। बातें की हैं आपने मेरे मुतालिक। यकीन मानने के मुझे अपना खुद भी नहीं पता था कि मैं इतना बुरा इंसान हूँ। हाँ, आप इतने बुरे इंसान हैं, बेईमान हैं आप। आपने खुद ही कहा है कि ईमान का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने आपसे कभी जिंदगी में लेन देन किया है? नहीं, मैं लेन देन की तो बात तो ही नहीं मैं कर रहा। बेईमान कहाँ मैं से तो कह हूँ? रहा आपने खुद कहा है कि ईमानियात को एक तरफ छोड़ें, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, हमें बस एक सिस्टम चाहिए। और मिर्जाइयत का सिस्टम आपके लिए बहुत अच्छा है, आप समझते हैं, वो बिल्कुल बहुत इस आपके वक्त सिस्टम से प्रॉस्पर कर बहुत रहा अच्छा है। है, हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि तो आपके क्या सिस्टम शक से नहीं बहुत अच्छा है? है। जिल्लत और रसवाई उसी सिस्टम की हो रही है ना। उसके अंदर से लोग आके बता रहे हैं कि ये जना के अड्डे हैं, ये वो हमारे पास सिस्टम आपका। हमारे पास कोई जो बाहर से है, नहीं, किसी मुखालिफ ने नहीं ये इतराज किया, ये आपके घर से आपकी औरतें ये इतराज कर रही हैं कि जना हो रहा है यहाँ पे खलीफा की नाक के नीचे। खलीफा भी यही काम करता होगा, जाहिर है, जब दूसरों को देखता होगा तो खुद भी करता होगा। लेकिन खलीफा वो खुद कह रहा है निदा को कि तुमने पेश किया था, तुमने तो खुद पेश किया था। यानी खलीफा को पता है कि जना हो रहा है, तो खलीफा को कोई उस पर एतराज नहीं है। ये है आपकी खिलाफत, जिसको आप कहते हैं ये दुनिया का सबसे आला तरीन ईमान है, सिवाय जना के अड्डे के और कुछ भी नहीं है वहाँ पे।
यही काम आपके मुस्लिम मऊ साहब करते रहे। लोगों ने आके ऊपर इल्जाम लगाए, हमारे पास मोबाइल करो, उनकी माओ बहनों की इज्जत लूटते रहे, यार बात लोगों को कत्ल करवा दिया, घर जला दिए लोगों के। ये इससे ना आपकी जो आप क्या बातें कर तारीख रहे है हैं ना, मिर्जाइयत की? इससे किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक तरफ आप मुझे कहते हैं कि मिर्जा फायदा साहब की हो रहा है, याद पड़ सबको गया। पता चला है कि ये मिर्जाइयत कितना बड़ा दजल है। आसमान के नीचे बदतरीन इस वक्त जो दजल है ना, वो मिर्जाइयत है। ये लोगों को पता चल रहा है, आप कह रहे हैं फायदा नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे जितने भी भाई बैठे हुए हैं ना, मैं मुनासिब नहीं समझता कि ये जैसा फोरम है मैं उस पे पूरे पाकिस्तान की और पूरे मुसलमानों की और लड़कियों की और सारे ख़वातीन की खिलाफ कोई ऐसी बात कर दूं जिससे सारों का खवातीन के खिलाफ बात नहीं हम कर रहे, हम कह रहे हैं मिर्जा ताहिर की निज़ाम के बेटी खिलाफ बात और कर नवासी दूं, ये बात कर रहे हैं। मिर्जा कल्चर के ताहिर खिलाफ आपके बात खलीफा कर दूं, राबे, मैं वो खुद बात उसका कर रहा हिस्सा है, हूँ। कोई और ठीक नहीं, है कोई मुखालिफ बात नहीं कर रहा। यार तारिक सुभान साहब, और आपसे ना उसी कोई में बात हो नहीं आपका सकती। खलीफा कह रहा है कि भाई तुमने तो खुद पेश किया था जना के लिए, अब क्या कहने आई हो? यानी खलीफा को पता है कि इसने जना के लिए पेश किया था। देखें मेरी बात ये सुने, हमारी आपका इतनी बड़ी जमात है, सबसे हमारे बड़ा पास हर छोटे सिस्टम, छोटे मसले को ना अपनी जात इलाही पर चस्पा इलाही करने का जमात टाइम का नहीं ये है। हाल है कि हर बंदा वहां पे लगा हुआ है, मिर्जाई कंजर खाना खुला हुआ है। ये हमारे अल्फाज नहीं है, ये उनके अल्फाज हैं। आपकी मिर्जा ताहिर खलीफा हजरत खलीफा राबे की बेटी और नवासी ये बात कर रहे हैं। मुल्हिदीन से बदतरीन है, ये उसकी मिर्जा ताहिर की बेटी कह रही है। तो फिर वो आपको मुल्हिदीन क्यों में नहीं भी ये ज्वाइन काम कर नहीं होता लेती? तो यहाँ हो रहा है। आप चौहान कहते साहब, हैं फिर वो सबसे आपको आला क्यों नहीं सिस्टम है ज्वाइन कर हमारा। लेती? आप मेरे सवाल का जवाब दें कि हम तो बुरे हुए, तो वो आपको क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? वो क्यों नहीं आप लोगों की जमात में या सुन्नी या शिया हो जाती? क्यों नहीं नहीं तो हो जाती? भाभी हो जाती, उसका ईमान का वो लेवल क्या इतना ऊंचा होती है। है, हमें उससे क्या भाई? हमने ये अब कहा है आपको कि उसने ये बातें बयान की हैं मसला सारा और वो ये है, आपके तारिक साहब घर मेरी की बात औरत सुन है, लें एक दफा। आपके घर की औरत आपके है साथ मसला ये है, आप किसी चीज का जिसके बोझ साथ उठा ये ही नहीं जुल्म हो सकते। रहा है। आपके घर आप की में औरत वजन है, उठाने की ताकत नहीं है, अच्छाई और बुराई को साथ लेकर चलना पड़ता है। वो आपके घर ठीक है, की औरत है जो ये बयान कर रही है कि आपने जना के अड्डे खोले हुए हैं और आप मुल्हिदीन से वो बदतर। जो मर्जी कह रही है उसको हाँ इंसाफ मिलना हाँ, चाहिए। तो वो आप फिर ठीक भी है, आपको मेरी शर्म नहीं बात आती, सुन लें। आपके आप फिर जम्मा भी कह साहब रहे हैं उसको हमारा इंसाफ सिस्टम दिलवा बहुत सकते अच्छा है। हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी जमात है वो उसको इंसाफ दिलवा सकती है, आप ले लें उसको, मैं अडॉप्ट कहता हूँ करें उस आपका लड़की को। सिस्टम तो करप्ट है ना, हमारा सिस्टम तो जना के करप्ट अड्डे है, आपने लगे हुए हमारा हैं। सिस्टम उसके गलत है, बाद उसका लेकिन क्या आप होगा ये वो बताएं तो कि हमें नहीं आपका पता, सिस्टम क्या कर रहा है। लेकिन आपके जना के आपका अड्डे सिस्टम तो उसने सिर्फ खोल लोगों पे दिए गंद ना उछाल सकता है। कि रब्बो में आपने मिर्जाई कंजर खाना मेरी खोला। बात सुने ना, आप सिर्फ गंद उछाल सकते हैं, आपका सिस्टम किसी ये चीज गंद की मैंने इस्लाह नहीं नहीं कर उछाला, सकता। ये आपके घर की बेटियों ने उछाला है। तो यार इस और वक्त वीडियो तो आप ही उछाल उसकी रहे ऑडियो हैं। मौजूद है जिसमें आपका और यार खलीफा भी उससे साल बात पहले कर का रहा है। वाकया हो गया, हजारों हाँ, रेप पाकिस्तान जिसमें में रोज खलीफा होते भी हैं। बात कर रहा है। मेरी बात सुने, 45 मिनट अदालतों की के सुपुर्द करते हैं ऐसी चीजें, हर 45 चीज मिनट को की अपने ऑडियो मत्थे पे है नहीं ले लेते। जिसमें खलीफा की जाहलियत भी नजर आ रही है जो और मर्जी उसकी चाहे लो, बदमाशियां भी नजर आ रही 30-35 हैं पाकिस्तान से भी और गलत फैसले हो जाते कंजर हैं। कोई खाना में बड़ी जो बात कुछ हो रहा है रवि कंजर कोई वो भी बड़ी बात नजर नहीं आ है, रहा है। ये सारी चीजें दुनिया के साथ होती हैं, कोई बड़ी अच्छा, बात नहीं। ये आप देख लें, ये हाँ, कहते हैं जी अभी कल ये को कह आपके रहे थे जमात हमारा, साहब के कोई केस हाँ निकल मेरी आए तो बात फिर सुन, आप कह देंगे कि वो सारी चीजें अभी गलत ये होती कह हैं, रहे आप थे जम्मा हमारा गोश्त क्यों मार रहे हैं? सिस्टम सबसे बेहतर है, अब ये कह रहे हैं ये वो भी वहां पे भी गंद है, हमारे पे भी गंद है। ये और इनका चाहे हाल तो है। यार आप बात का मतलब पता नहीं क्या निकालते हैं, आप तो अभी आपने कहा है लस्सी की तरह कि लड़ाई सारी बताते हैं। जगह में ये होती हैं खराबियां, यानी आपका मतलब है हर जगह जना हो रहा है तो हमारे भी देखिए हो मेरी रहा है। बात सुने तारिक साहब, बात पता है क्या है, आपके पास ना बहुत ज्यादा वक्त है हर फजूल मामले में ना उसको डिस्कस करने का तो पूरा फजूल दिन। मामले तो आप तो उठा रहे हमारे हैं, पास नहीं है इतना आप कह वक्त। रहे हैं, हम जो बंदा जो देखिए काम कर रहा है अगर ठीक कर रहा है तो आप उसको कह करने रहे हैं कि देते हैं। हमारा सिस्टम सबसे आला है, हम बता रहे हैं कि आपके सिस्टम के अंदर से ये गवाहियां हैं और कि यार ये एक जना 100 के अड्डे साल में हैं। तुमने केस निकाल लिया तो कौन सी बड़ी बात कर ली है? चलो एक 100 साल में एक केस ले वो आए तो हो वो तो क्या वही कर बात लिया है ना, तुमने? आप जैसा बेशर्म आदमी फिर यही कहेगा कि सानू नहीं क्या फर्क पड़ता है अगर जना हो रहा है तो यही हम कह रहे 100 हैं कि साल में भी ये है एक केस बेशर्मी तुम सिस्टम। लेकर आए हो और तुम यार हमें ये आप कह वाली रहे हैं बात जना सिखा हो रहा रहे है तो हो। फिर क्या हो गया, सब भी होता है, मैं तो नहीं ये कह रहा, आप में तुम्हें भी हो पता रहा है नहीं कौन जना। सी जुबान, तुम फारसी से तो नहीं तुमने उर्दू सीखी? ये अभी बता रहे हैं तुमने कि तुम कह रहे हो जी जना हमें भी हो रहा पता है, नहीं यार, सारे मुझे हर तो एक में समझ होता नहीं है आ इस रही तरह का आपकी। बातें। आप तो मुझे चंगे भले मेंटल केस लगती हैं कि बात कुछ और करो और समझ कुछ और आती है आपको। तो मेंटल केस आप भी हैं ना, आप भी वही मुझे तो बातें कर रहे हैं, मतलब आप मेरी कह रहे हैं मैं हमारा मेंटल सिस्टम केस सबसे इस अच्छा है। लिहाज से अपने आप को मानता हूँ ये कि आप मेंटल जैसे केस की बंदे के बात है, साथ मैंने मैं मसला बता रहा लगाया। हूँ कि आपका सिस्टम रॉटन सिस्टम है, उसको मैं अच्छा आपको है मिसाल भी तो दे रहा हूँ। फिर ना आप रहो कह ना रहे हैं इस सबसे
सबसे सिस्टम अच्छा में निकल सिस्टम। गए हो तुम, तो जो जिस सिस्टम में हो वहां पे तो खुश रहो।
उधर भी रो की हो गया अपना वाटर साहब ते की ना वलीद भाई भी बैठे ने राय साहब आए ने राय साहब ने साथी को आए ने गल करो ने कोई बशरफ के की नाम है। तुम्हारा सिस्टम रॉटन है, ये तुम्हारे अंदर से गवाही मिली है, हमने नहीं दी। नहीं तारक चौहान साहब ठीक है, आप एक सिस्टम होता है वो खुद ही उसमें सेल्फ ऑडिट का सिस्टम भी साथ साथ चल रहा होता है। और आप ये देखें कि अगर आप कोई भी चीज़ देखते हैं उसको गलती को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या वो रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर वो नहीं रिपीट हो रही तो लाजमी बात है कि उसको कोई ठीक कर रहा है। इसके बारे में मैं आपको और क्या कहूँ। नहीं आप बताएं ना, फलां इंक्वायरी हुई, फलां बंदे ने कंडक्ट की, ये फाइंडिंग्स आई, या तो फिर तो मैं कहूँगा कि आपके सिस्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड अकाउंटेबिलिटी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक देखें, कई लोगों ने ख़त भी लिखे थे आपके खलीफा साहब को कि ये निदा नसर वाला मसला जो है ये बहुत डैमेजिंग है जमात के लिए, और आप क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है जमात के अंदर, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे जी। तो मास्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप लिख रहे हैं कि समझदार नहीं है जी, बहुत शुक्रिया। जितने भी राजा भाई, जितने भी जो गैर अहमदी है ना वाटर भाई, इनमें से कोई भी समझदार नहीं है। अगर होता तो अहमदी ना हो जाता, इसलिए इनको समझदार कहने गलती ना करें, ये फिर आपस लड़ाई करेंगे। ये फिर आप, हाँ कोई भी नहीं है। पीर साहब समझदार होते तो मेरी 25 साल तबलीग के नतीजे में कुछ तो नतीजा निकलता ना, तो इससे मालूम होता है। और दूसरी बात यह है कि वाटर भाई, तारक भाई जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनका जो इजरा हुआ है ना असल में वबीयत का, ये हुआ है अहमदियत को मज़ीद हवा देने के लिए। ये मुखालफ हवा है और ये सिर्फ मुखालफत करते हैं। इसका जो है ना सबूत यह है कि तारक भाई को मैंने कहा था कि आप लोगों को तबलीग करते हैं, जम्बा साहब की कहता है ये हमारी तबलीग है कि हम ये अहमदियों की बेखनी करते हैं। तो मेरे भाई ये आपको ऊंचा उड़ाने के लिए जो वो चलती है ये जम्बीयत, तो कैसा लगा आपको? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया टॉप मास्टर साहब। मिर्जाई कंजर खाना जिंदाबाद। ये ऊंचा उड़ रहा है, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, सारी दुनिया में फैल जाएगा ये आपकी। तारक चौहान साहब बात ये है कि आप वाकई कोई तबलीग नहीं कर रहे, मर्दियों को नहीं बुला रहे अपने, और जो मैं सुनता हूँ तारक चौहान साहब से वो तो ये बात है कि ये तो मिर्ज़ा साहब की राइटिंग्स पेश करते हैं कि इसके मुताबिक तो आपको ये खिलाफत वाला निज़ाम छोड़कर ही देना चाहिए, और मिर्ज़ा साहब की राइटिंग्स के अंदर रहकर, ये नहीं कि ये कोई अपनी तरफ से या जंबा साहब की तरफ से कुछ करता है। मैं जो मिर्जाई आता है वो उसके पास कोई भी तहरीर नहीं होती, मिर्जा साहब वो कहानियां सुनाते हैं। हाँ, ये वैसे काफी टॉक मास्टर साहब आपके पास ना ये काफी क्या आगे पीर साहब। बात ये है राजा भाई कि तारक भाई को जरूरत है ये सारी तहरीरें पढ़ने की, हमें तो जरूरत नहीं है ना, हम तो पहले से ही खुश किस्मत है कि हमें उनका मकसद क्या है उन तहरीरों का? मेरा मकसद ये होता है कि तहरीरें पढ़ पढ़ के थोड़ा सा टाइम दे दो की जो मुखालफत की जाए। जी पीर साहब, मिर्जा साहब की तालीम से अहमदियों की मुखालफत की जाए, ये इनका मतलब। ये बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं हम, मिर्जा साहब की तहरीरात इनको सुना रहे हैं। जब्बा साहब के तालीमात का प्रचार तो ये करते ही नहीं है बिल्कुल। बादशाह जी मौका भी तो दो। ये आपको देखिए मौका ही मौका है जायद अस्कानी भाई। बहुत शुक्रिया। अब देखें मास्टर जी ने, मुझे तो इनसे उम्मीद हमेशा ऐसा ही रहा है, आज ऐसी बात कर दी कि मैं हैरान हो गया कि मास्टर जी जैसे एक इंसान ने ये किस तरह की बात की। और वो ये थी, कहते हैं कि ये दावत व तबलीग का काम नहीं कर रहे। भाई इन्होंने आपके क्या कहते हैं खलीफा को मुबाहला का चैलेंज दिया हुआ है, और क्या करें, आपके खलीफा सामने नहीं आते, ये आपको नहीं मालूम? यानी बात दावत व तबलीग से अब परे है, मुबाहला का चैलेंज मौजूद है। आप तो मैं वही तो कह रहा हूँ।
तो आप कहते हैं दावत तबलीग का काम नहीं कर रहे? नहीं, ये अपनी दावत और तबलीग नहीं करते ना कि भी जब साहब को मानेंगे तो ये होगा, वो होगा, जन्नत मिलेगी या दोजख मिलेगी, कुछ भी नहीं कहते। इनका सिर्फ एक ही मिशन है कि मिर्ज़ाइयों के ख़िलाफ़ जो है वो जितना मवाद हो सकता है वो निकाल के बताया जाए, और इसीलिए ये किताबें भी पढ़ नहीं, वो लेते जो हैं। मवाद हम पेश करते हैं वो कहाँ से पेश करते हैं? ज़ाहिर है